Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I am Sumaira Nazir from Bahria College Majid EAB 2. I prepared a video lessons for the students of grade 8. This video is about relations and function, which is chapter 7 of your textbook. First of all, I would like to explain relation and functions. Relations and functions is one of the most important topics in algebra. Relations and function, these are the two different words having different meanings mathematically. You might get confused about their difference. Before we go deeper, let's understand the difference between both with a simple example. Let's take an example of order pair representing as input and output. Students, relation shows the relationship between input and output, whereas a function is a relation which derives one output for each given input. You can understand well relation and function by this diagram. All functions are relations, but not all relations are functions. Now I would like to explain these both terms separately. What is a function? A function is a relation which describes that there should be only one output for each input, or we can say that a special kind of relation, for example of order pair, which follow a rule. For example, every x value should be associated to only one y value is called a function. Now, what is a relation? In mathematics, a relation is a set of inputs and outputs that are related in some way. When each input in a relation has exactly one output, the relation is said to be a function. To determine if a relation is a function, we make sure that no input has more than one output. I would like to share the examples of relations in our daily life. Sometimes we use the word is brother of, is uncle of. Basically, these words representing the relationships. In mathematics, examples of relations are is less than, is perpendicular to. Sometimes we use the word is equal to. So these types of words in mathematics shows the relationships. In fact, some mathematicians have described mathematics as the study of relations. Dear students, how we can represent the relations? This diagram elaborates this concept well, inshallah. In first diagram, you can see we can show the relations in table in which we have two columns. First column x representing the values of x and second column y representing the values of y. So every x has a combination with y. These are the relationship of values in a table form. We can also represent relations in graph. As you can see, every red dots basically representing the relations of x and y. And the most general way which we are going to study in our chapter 7 are the mapping diagrams in which we have domains and codomains, and we can show their relations with arrowheads. It will be elaborated inshallah by that diagram. Relations between two sets. As you can see, we have two sets, set A and set B. Set A is a domain and set B is a codomain. Please emphasize on the diagram. Relation has sense, that is a direction in which it goes. This indicated by arrowheads. In any relation, we will have a domain and a codomain. So in that diagram, A is a domain and B is a codomain, as I told you earlier. The member that is being matched to in the codomain is referred as the image of a relation. As you can see, x is the image of A, y is the image of B, and C and Z is the image of D. A member of domain may have more than one image. Now I would like to explain the types of function. The first type is one-to-one function. In that one-to-one function, each element of P there is a distinct element of Q. And many-to-one function, a function which maps two or more elements of P to the same elements of set Q.
For further elaboration, I can take help from the diagram. For one-to-one function, you can see every element of domain has a relation with the elements of range. 1 has a relation with 5 and 7 has the image of 2. So basically these are representation of one-to-one function. And this diagram is representing many-to-one function. As you can see, 1 has relations with A1 and A2. So it is a pictorial representation of many-to-one function. My next definition is notation of a function. Function notation is the way a function is written. It is meant to be a precise way of giving information about the function without a rather lengthy written explanation. It can be elaborated by the diagram. As you can see, the f, which is written in red color, shows the name of function. X written in green color indicating the input, and 3x plus 1 written in the purple indicating the output. Input always representing domain and output always represent range. फंक्शन नोटेशंस, इसमें हम फंक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी वैल्यूज़ अपनी पुट कर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशंस आपके सामने मौजूद हैं। एक्स के जो भी वैल्यू आपको दी जा रही होगी उसको आपने इक्वेशन में पुट करके इजीली इवैल्यूएट कर लेना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए, जो भी साइंस इनमें दी जा रही हैं उनको फॉलो करते हुए। जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एक्स की जगह पर मैंने वैल्यू पुट की है 2, जिसकी वजह से मेरा आंसर आ रहा है 7। सेकंड में एक्स की जगह पर हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 9, which calculate the answer of 1, and in third we have a value of s is equal to 4, so s by s यानी 4 by 4 representing 16। तो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास x और y की दी जा रही होंगी उसको हम अपनी इक्वेशन में एज इट इज़ पुट करके इजीली इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेंज ऑफ अ फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ all output values of a function basically representing the range of a function. The set of values of x is called the range of f, or it goes from domain to function and range. इसको मैं एक्सप्लेन यूँ करना चाहूँगी कि हमारे पास x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं जिनको पुट करके हम अपने आंसर्स डेवलप करते जाते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं, वो हमारे पास उस फंक्शन की रेंज कहलाती है। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ 7A में, और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एरो डायग्राम्स दी जा रही हैं और हमने इन डायग्राम्स को देखते हुए ये बताना है कि ये किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर रही हैं या डिफ़ाइन नहीं कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आप देखें, हमारे पास डोमेन में जो एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 2, 4, 6 एंड 8, एरो हेड के साथ ये कोड डोमेन के एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड हुए हैं 1 और 2 के साथ, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पर येस। क्वेश्चन नंबर डी भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी हमारे पास डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8, और इनका जो रिलेशनशिप है वो कोड डोमेन में पी के साथ और आर के साथ है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्यों इग्नोर हुआ है, लेकिन चूँकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स का रिलेशनशिप शो हो रहा है कोड डोमेन के साथ, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन हमारा कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि जो आपके डोमेन में एलिमेंट्स मौजूद हों उनका रिलेशन एरो हेड के साथ कोड डोमेन में मौजूद एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, तो वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ही मैंने 2 मज़ीद पार्ट सिलेक्ट किए हैं, बी और ई। बी को सिलेक्ट करने का मकसद यहाँ पर ये था कि डोमेन में जो लिखा हुआ नंबर 2 है इसके 2 इमेज हैं कोड डोमेन में, ए और बी, तो इसलिए ये फंक्शन को शो नहीं कर रहा है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो सिंगल इमेज शो करें। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स डोमेन में लिखे हुए हैं, फर्स्ट सर्कल में लिखे हुए 2, 4, 6 और 8, इसमें 4 इग्नोर हो गया है। 4 का कोई इमेज मौजूद ही नहीं है कोड डोमेन में, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर नो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास x की इक्वेशन दी जा रही है और आपको जो फंक्शंस दिए जा रहे होंगे जो कि आप x की वैल्यू को समझते हुए पुट करेंगे अपने इक्वेशंस के अंदर और इजीली कैलकुलेट करेंगे अपने आंसर को। आप सबसे पहले नीचे फर्स्ट कॉलम में ध्यान दें
कि फंक्शन ऑफ x के लिए हमारे पास इक्वेशन मौजूद है 6x - 4। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट की है 2, जिससे मेरा आंसर क्या आ रहा है 8। सेकंड में इक्वेशन की तरफ जब जा रही हूँ तो मैंने x की वैल्यू चेंज की है। x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है -4। तो x की वैल्यू -4 करने से मेरा जो फंक्शन है उसका आंसर क्या आ रहा है -28। और नेक्स्ट में मेरे पास x की वैल्यू 1/3 है और 1/3 को प्लेस करने से मेरा आंसर चेंज हो गया है जो कि है -2। तो जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ होंगी उसको सिंपली आप इक्वेशंस में प्लेस करेंगे और अपने क्वेश्चंस को इवेल्युएट करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी मैंने फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट सेलेक्ट किए हैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर। और एक इक्वेशन मेरे पास दी जा रही है जो है 5 - 2x। तो फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू 1 ले रहे हैं। बहुत सिंपल है ये, आपने x की जगह पर 1 पुट किया, 5 में से माइनस किया 2, हमारा आंसर आ रहा है 3। 4 के अंदर मेरे पास x के 2 वैल्यूज़ दी जा रही हैं, मतलब फंक्शन ऑफ x वो 2 हैं। एक दफ़ा है +3 और एक है -3। तो +3 और -3 दोनों को साइमल्टेनियसली आपने पुट करना है अपनी क्वेश्चन के अंदर। आप देख रहे हैं अपने डायग्राम के अंदर, यहाँ क्वेश्चन के अंदर, कि पहले मैंने x की जगह पर 3 पुट किया तो मेरा आंसर इक्वेशन का आ रहा है -1। और फिर सेम इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट की है -3 तो मेरा आंसर आ रहा है 11। और एट द लास्ट मैंने अपनी इन दोनों इक्वेशंस के आंसर्स को कंपाइल किया है f3 + -3 के साथ फंक्शन ऑफ 3 को। तो इसमें -1 + 11 से मैंने अपना आंसर कंप्यूट कर लिया है जो कि है 10। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टास्क है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सो क्वेश्चन 4 इज सिमिलर विद क्वेश्चन 3, सो यू हैव टू डू इट बाय yourself accordingly. Now proceed toward the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास जो इक्वेशंस दी जा रही हैं उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करके अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 में f2 + g के साथ फंक्शन है 2 का। तो हमने 2 की वैल्यू 2 को रिप्लेस किया है x की जगह पर, और सेकंड में हमने g के साथ जो फंक्शन दिया जा रहा है, जो फंक्शन नोटेशन हमारे साथ मौजूद है, उसमें हमने उसकी वैल्यू पुट की है। तो दोनों के हमारे आंसर आ गए हैं 4 एंड -1/2। इनके आंसर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जस्ट आपने अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है इक्वेशन में। जहाँ जहाँ x दिया जा रहा होगा वहाँ पर x की वैल्यू आप प्लेस करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके इजीली कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन है हमारे पास 5x - 9। तो 5x - 9 में हम लोगों ने क्या किया कि आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन ऑफ x इन्होंने हमें दिया हुआ है = 2x। तो हमने अपनी इक्वेशन पुट की है 5x - 9 = 2x। स्टूडेंट्स, आप बेहतरीन तौर पर जानते हैं कि इक्वल की साइन के लेफ़्ट टू राइट जब हम नंबर्स को मूव करवाते हैं तो उनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जो पॉजिटिव होते हैं वो राइट साइड पे जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो प्लस हो रहे हैं मतलब वो माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले वहाँ डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए यहाँ पर अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ x को, जो कि 3 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट किया है, और आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वल की साइन मौजूद है। तो जब भी इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्वल की साइन मौजूद हो तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे काम करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर दोनों साइड का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद जो मेरा आंसर है वो एक साइड का 4 आ रहा है और सेकंड साइड का 13 आ रहा है। तो दिस बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल, सो आवर आंसर इज फॉल्स। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास आपने ट्रू और फॉल्स चेक करना है वेरीफाई करते हुए, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हुए। यहाँ पर जो इक्वेशंस दी जा रही हैं वो 3/4x + 1/2 है, और सेकंड इक्वेशन में 1/1/2 - 2/3x दिया जा रहा है। तो आपने g3 और g-6 की वैल्यू पुट करते हुए इसको देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग 2 and 3 simultaneously by previous methods and analyze both sides are equal or not। तो वेरिफिकेशन आप करेंगे अपनी दोनों साइड्स के अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करके। फर्दर अपनी असिस्टेंस के लिए आप अपने प्रैक्टिस नाउ की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। बुक्स आप सबके पास मौजूद होंगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की, इंशाल्लाह उतना आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। और तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन में पॉसिबल नहीं है सॉल्व करवाना, तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ स्लाइड्स में शो कर दिए हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपने ख़ुद अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करना है, कॉपी डाउन करना है।
At last, I would like to assign you home assignment. Read the summary carefully mentioned at the end of a chapter on page 189. Then complete the remaining parts of questions in your copy. और आपकी जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपने आखिर में दी गई जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो लाजमी अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फर्दर असिस्टेंस के लिए अपनी बुक को फॉलो करें और कोशिश करें इनको सॉल्व करने के लिए। विश यू वेरी गुड लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।